now we are going to discuss about the solution of this paper. The first question, which consists of parturition. After parturition, colostrum is released from mammary glands, which is rich in. So option given here, fat and low in proteins, proteins and low in fat, proteins, antibodies and low in fat, proteins, fat and low in antibodies. So parturition के बाद जो colostrum है, this is yellow fluid that is rich in IgA antibody. So this is high in antibody, proteins, but low in fat. So the correct option is this, bachcho. Proteins, antibodies and low in fat. Means answer 3 is correct. Okay. Next question. For normal fertilities, this is very common question. Normal fertility, percentage of sperms must have normal shape and size, and at least -% must show vigorous motility. So you know, shape and motility both are important for what? Fertilization procedure. तो कितना % normal fertility होना चाहिए? तो 60. And motility कितनी होनी चाहिए? That must be 40. So the answer is what? Answer number 3. 60 and 40. Then switch to next question. So, next question, level of which hormones are at their highest during the luteal phase of menstrual cycle? So, menstrual cycle has how many phases? 4 phases. Menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and luteal phase. तो luteal phase means क्या बन जाएगा इसमें? Corpus luteum का formation होता है. By what? By ruptured follicle. और ये corpus luteum क्या release करते हैं? Progesterone. So the correct option here is progesterone. Answer 2. So next question again. Presence of XX. This XX is what? This is for female. Or XY for male. Chromosome in human zygote depends upon. किसके ऊपर ये depend करता है? The sperm carrying X chromosome fertilize the ovum. The sperm carry Y chromosome fertilize the ovum. The sperm without any chromosome fertilize the ovum. And the sperm carrying X or Y chromosome fertilize the ovum. So we know sperm has different chromosome. जो egg होता है that consists both same chromosome, that is X chromosome. So sperm के पास क्या है? X और Y दोनों है. तो answer is what? Sperm carrying X or Y chromosome fertilize the ovum. So correct option is what? Answer number 4. Next question. Second meiotic division in secondary oocyte results in the formation of. Now second meiotic division. Meiosis जो है female body में कब start होता है? At puberty, जब meiosis 1 complete होता है. और second meiotic division कब complete होगा? तो उससे क्या बनता है? Secondary oocyte किस चीज में convert हो जाएगा? ये fertilization के दौरान होता है. तो वो बन जाता है haploid ovum. और दूसरा जो structure है उसको क्या बोलते हैं? Polar body. तो वो क्या होगा? Second polar body. So second meiotic division of secondary oocyte results in second polar body and haploid ovum. So option number 4 is correct. Next question. The sperm and the egg make different contributions to zygote. Which of the following statements about their contributions are true? तो पहला है, अगर हमको देखें, मैंने आपको बोला है कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें हमको फाइनलाइज करना कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और हमको इसमें से चुनना है, तो हम हर स्टेटमेंट पे कंसिडरेशन लेंगे. स्पर्म कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट करता है? दिस इज नॉट. हमको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है. एग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. यस. बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट हैप्लॉइड न्यूक्लियस. यस. तभी जा करके स्पर्म का न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस फर्टिलाइज बन के जब जाइगोट बनाता है तो वो हो जाता है 2n. ठीक है.
बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट माइटोकॉन्ड्रिया? नो, माइटोकॉन्ड्रिया से कोई जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है. तो वी गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 2 and 3 कहां पे है? यस. सो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement regarding mammary gland is incorrect? Now what we have to choose now? Incorrect statement. They are paired glandular structure that lies over the pectoral muscles. Each gland has 100 to 500 lobulated milk glands. देखिए पेक्टोरल मसल्स तो करेक्ट है, लेकिन मैमरी ग्लैंड में लोब्स की संख्या कितनी होती है बच्चों? 15 to 20 मैमरी लोब्स है ना. और यहां पे कितना गिवन है? 100 to 500. So this statement is incorrect. बाकी रेस्ट दोनों स्टेटमेंट मतलब सही हैं. तो we get the answer now. Option number 2 is correct. Now select the correct statement. Now we have to select correct statement regarding oogenesis. First statement is, it is initiated during the embryonic development stage when millions of oogonia are formed within each ovary. ठीक है. Graafian follicle release primary oocyte. ये तो स्टेटमेंट सही है बच्चों, बट क्या ये स्टेटमेंट सही है? ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो क्या वो प्राइमरी oocyte रिलीज करता है? नो, वो क्या रिलीज करता है? सेकेंडरी oocyte, जो ओव्यूलेशन के दौरान निकलता है. At puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left. This is correct. Now, secondary oocyte within tertiary follicles grows in size and completes its second meiotic division. क्या ये statement correct है? आपके पास अगर हम correct statement देखें तो अभी हमारे पास 1 और 3 is correct है ना. So 1 and 3 is correct. तो this statement is wrong. हमारे पास जो options हैं उसमें हम देख सकते हैं 1 and 3 is correct. तो यहाँ पे solution number 2, answer number 2 is correct. 1 and 3. Okay? Next question. Choose the incorrect pair. Now we have to extract incorrect. Acrosome, enzyme filled cap structure on sperm head. ठीक है. एक्रोसोम क्या है? एंजाइम फिल्ड कैप स्ट्रक्चर ऑन स्पर्म हेड. ठीक है. मिडल पीस possesses numerous mitochondria. Correct. Sperm tail facilitates sperm motility, essential for fertilization. Absolutely correct. Semen contains only sperms. No, semen consists of seminal fluid also, है ना, which is the contribution of most accessory glands, जैसे seminal vesicles, prostate gland, ये सारे जो है अपने fluid contribute करते हैं, जिसमें sperm भी present होता है. तो यहाँ पे given है कि semen में सिर्फ और सिर्फ sperm होता है, तो this is absolutely wrong. So incorrect pair is what? Option number 4. So 4 is correct. Next. Now we have to match, है ना, match the hormones with their function. Luteinizing hormone, luteinizing hormone का काम क्या होता है? Develops corpus luteum. ठीक है, ये एकदम सही है. Progesterone essential for maintenance of uterine endometrium. ये भी एकदम सही है. Estrogen develops female secondary sexual characteristic. Correct. Follicle stimulating hormone, maturation of Graafian follicle, this is also correct. Oxytocin causes uterine contraction. मतलब जो hormones दिए हुए हैं उसके बगल में जो functions given हैं वो दोनों ही सही हैं. तो देख लीजिए बेटा, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5. So option number 3 is correct here. Now again we have the match the following questions. Parturition, parturition क्या होता है इसमें? Duration between pregnancy and birth, attachment child. Yes, parturition is childbirth. तो A का 3. Ovulation, release of egg from Graafian follicle. 5. है ना, यहीं पे हम लोग ऑप्शन लिख देते हैं. Gestation, duration between pregnancy and birth. Implantation, attachment of zygote to the endometrium. And conception, conception, यहाँ पे हम मैच कर लें, release of egg, stoppage of menstruation, release of egg, process of milk formation of zygote by fusion of the egg and sperm. यहाँ पे मैच करिए बच्चों. A का 3, B का 5, C का 1,
डी का 2 एंड ई का 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन गिवन है, बट उन ऑप्शंस पे नहीं जाना है। जो ऑप्शन यहाँ पे देखो, 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन है, बट वो 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो हमने जो मैच किया है, देखो हमारा सारा लगभग एक जैसा मैच कर रहा था, यहाँ तक सही था। लेकिन डी का क्या होता है, 4 है ना, डी का जो है 2, सॉरी, डी का 2 होगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन का मतलब ही क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द एंडोमेट्रियम। तो बाय डिफॉल्ट यहां तक देखिए ये दोनों बिल्कुल सही था, लेकिन यहां पे हमको करेक्ट ऑप्शन मिल गया, तो ई का 7 इज द करेक्ट वन। तो 146 का 3 इज द करेक्ट वन। नाउ here it is a figure which is taken from NCERT. The figure given below show the sectional view of ovary. Select the option which gives correct identification of marked structure. है ना, diagram is not clearly here, but we can extract that. A, primary follicle. It is called gamete mother cell. क्या primary follicle को gamete mother cell बोलते हैं? No, oogonia is considered as primary gamete mother cell. Corpus luteum. It cannot be formed and added after birth. ये गलत है. Graphian follicle, mature follicle which ruptures to release secondary oocyte. Yes, ये तो सही है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो C, ये सेकेंडरी, ये जो C है वो ग्राफियन फॉलिकल है, ये एकदम सही है बेटा। दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, देखो ये रप्चर होने के बाद ये ओवम जो है रिलीज हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte या ओवम जो है वो रिलीज होता है। टर्शियरी फॉलिकल, अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट्स ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। दिस इज रॉन्ग, तो करेक्ट वन इज आंसर नंबर 3। 147 का 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट अगेन डायग्राम इज हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा डायग्राम है बेटा, कलर डायग्राम है तो हम समझ सकते हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल ये बना, और यहां पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ओव्यूलेशन के दौरान सबसे ज्यादा पीक ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है यहाँ पे, तो ये कौन सा होता है, LH सर्ज, और नीचे वाला कौन हो जाएगा, FSH। यहीं पे जब ये ओव्यूलेशन रप्चर हो रहा था, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से बन गया है, तो इस वाले पीक ये किसके लिए है, एस्ट्रोजन के लिए, और ये है कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, तो दिस पीक इज फॉर प्रोजेस्टेरॉन। देखिए हमने सारे हॉर्मोन्स देख लिए, अब हमको यहाँ पे देखना है, A इज LH, B इज ओव्यूलेशन, C इज मेंस्ट्रुएशन, करेक्ट, D इज प्रोलिफेरेटिव फेज, बिल्कुल सही, एंड E इज लूटियल फेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लूटियम फॉर्म कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर द डायग्राम। ओके, so we are going to switch with next another question. Which of the following statement regarding Sertoli cell is correct? अब हम सर्टोली सेल की बात करें और हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। इट इज फाउंड इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तो सही है, एंड सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, नो, लीडिक सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। It is a place where spermatozoa is concentrated and stored until ejaculation, no. It secretes spermatozoa activating substance like fructose, citrate, inositol, prostaglandin and protein, bilkul absolutely wrong. It is found in seminiferous tubule, correct, and function as, absolutely correct. Sertoli cells another name is also nurse cell, और यहाँ पे देखो seminiferous tubule में तो मिल रहा है, नर्स सेल है फॉर डिफरेंशिएटिंग स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। सो 149 का 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन करेक्ट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन, अब मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमको ध्यान देना है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट, नो, रॉन्ग। द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्के, एंड ऑफ द साइकिल, आर्के इज बिगिनिंग, इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। And at menopause in the female there is especially abrupt decrease in gonadotropic hormone, and in human menstruation can be deferred by administration of combination। अब देखो यहाँ पे जो हम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की बात कर रहे हैं वो LH और FSH,
बट द मेन कंसिडरेशन यहाँ पे किसके कॉम्बिनेशन से होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यस, जब इनका सिक्रीशन ड्रॉप डाउन होगा ना बच्चों, तभी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, in the given columns, column 1 contains structures of female reproductive system and column 2 contain its feature. Select the correct match from the option given below. अब देखिए अगेन बेटा हम लोग यहीं पे इसका आंसर लिखते चलते हैं तो पता चल जाएगा, एम्पुला, या ये देखते हैं पहले तो हमको उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। It undergoes cyclic changes during menstrual cycle. कौन होता है, एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम में 1 हो जाएगा। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ये किसके लिए है, फिम्ब्री के लिए। वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस। देखो हम लोग इधर से चल रहे हैं तो वी कैन एक्सट्रैक्ट कि सही ऑप्शन कौन सा है। लार्जर हेयरी फोल्स विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, लेबिया मेजोरा एंड ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। किसको बोलते हैं, ओविडक्ट को। देखो बच्चों हमारे पास ऑप्शन मिल चुका है, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और हमने जल्दी से ऑप्शन को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2, ई का 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, आंसर नंबर 3 है ना। अगेन ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1, डी का 2, ई का 1 बच्चों। यस, 151 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Next, if the mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is likely to happen? अगर fertilize नहीं हुआ तो corpus luteum will degenerate, estrogen secretion further decreases, primary follicle starts developing, progesterone secretion rapidly decreases. अगर ovum fertilize नहीं होता है तो corpus luteum क्या हो जाएगा, degenerate हो जाएगा। अगर fertilize हो जाता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होता क्योंकि वो लगातार क्या रिलीज करता, प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग व्हाट, एंडोमेट्रियम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, तो 152 का 1 इज करेक्ट। नाउ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ टू द एंड इज, है ना, कौन कौन जो है शुरुआत से होता है उसके बाद क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले तो बेटा फॉलिकुलर फेज में FSH निकलेगा, तो देखो 1 या 3 में ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर देखिए FSH से जब फॉलिकल बन जाता है तो क्या रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, और जब फॉलिकल रप्चर करेगा तो कॉर्पस ल्यूटेम बनेगा और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। पहले FSH फिर एस्ट्रोजन क्योंकि फॉलिकल से रिलीज होता है, एंड देन जब फॉलिकल रप्चर होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, है ना। हम अगर बात करें तो 153 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट क्योंकि ये ऑर्डर हमको मिल चुका है। ठीक है बच्चों। नाउ After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast call. अब देखिए finger-like projections जो हैं वो कौन होता है बेटा, outer layer is chorion, तो chorionic villi, villi मतलब finger-like. They are surrounded by which? ये surrounded by, देखो chorionic villi है, yes ये हो जाएगा बेटा uterine tissue. So हम देख सकते हैं देखो chorionic villi and uterine tissue, yes option number 2, 154 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब देखो ये डायग्राम है ना, डायग्राम है, ये डायग्राम जो ब्लास्टोसिस का बताया जा रहा है, और इस ब्लास्टोसिस में जो ये आउटर लेयर है तो ये आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और जो ये अंदर का ये पूरा लेयर हो गया बी, ये क्या है, इनर सेल मास। ठीक है, तो देखो ए का ट्रोफोब्लास्ट करेक्ट, बी का इनर सेल मास करेक्ट, यानी कि 1 और 3 दोनों में चीजें करेक्ट है। अब हमको सबका फंक्शन देखना है ना।
तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में कौन एम्ब्रियो बनाता है? तो एम्ब्रियो बनाने का काम करता है इनर सेल मास। तो देखिए इनर सेल मास का फंक्शन है डिफरेंशिएटेड टू एम्ब्रियो, करेक्ट, और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो 155 का 1 इज करेक्ट। हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, देखिए बेटा ये तो डायरेक्ट सवाल है, प्लेसेंटा से क्या क्या सीक्रेट होगा? HCG, HPL करेक्ट है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और उसके अलावा क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो करेक्ट कौन हो जाएगा? नंबर 1 HCG, HPL, प्रोजेस्टेजन्स एंड एस्ट्रोजन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हार्ट जो है वो कब बनता है? हार्ट बन जाता है बाय द आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, करेक्ट है। लिम्स एंड डिजिट्स, अच्छा हमको क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट, तो ये तो सही हो गया। लिम्स एंड डिजिट्स बाय द एंड ऑफ 2nd month, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बाय द एंड ऑफ 24, नो, ये भी जो 2nd month 3rd month है उसके अंदर अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। एंड फर्स्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 5th month, करेक्ट है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों? 157 का 3 इज करेक्ट। नाउ signals for parturition originate from both placenta as well as fully developed fetus. Yes, this is correct. Parturition is the time of what? Childbirth. और इसका रिफ्लेक्स कौन देता है? फीटस भी देता है और मदर की बॉडी भी। मदर की बॉडी क्या करेगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल भेजती है CNS के थ्रू, है ना, और फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो दोनों के थ्रू प्लेसेंटा as well as fully developed fetus is the correct answer. Which of the following hormone is responsible for both the milk ejection reflex and fetal ejection reflex? अभी हमने just बात करी है milk ejection reflex and fetal ejection reflex, मतलब बर्थ के लिए, तो वो कौन होगा? ऑक्सीटोसिन, है ना, मिल्क भी इजेक्ट होता है और फीटस भी। Now assertion, testes are situated outside the abdominal cavity within the scrotum, correct. Scrotum helps to maintain low temperature of testis necessary for spermatogenesis, बिल्कुल, इसीलिए ये स्क्रोटम के अंदर लाई करता है। यानी कि both A and R are true और R is the correct explanation of assertion, है ना, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। स्क्रोटम में लाई ही इसलिए होता है टेस्टिस कि वहां पे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है बाकी रेस्ट बॉडी पार्ट से। तो 160 का 1 is correct. Now in testis, spermatogenesis occurs in seminiferous tubule and testosterone secretion takes place from the Sertoli cells. हम लोगों ने बेटा वो 160 डिस्कस कर लिया था, 161 भी assertion reason है। टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये लाइन तो सही है। एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन टेक्स प्लेस, नो, लीडिक सेल सिक्रीट करता है, तो ये तो असर्शन रॉन्ग हो गया, है ना। एंड टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। यस, टेस्टोस्टेरोन का काम ये होता है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, इनकरेक्ट। यस, असर्शन इज फॉल्स but R is, reason is true. Now correct sequence for what? Correct sequence for transportation of sperm cells in male reproductive system. अब हमको sequence find out करना है। Seminiferous tubule ठीक है, rete testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens। Seminiferous tubule, vasa efferentia, epididymis, inguinal canal, urethra। Testis, epididymis, vasa efferentia, vas deferens, ejaculatory duct, inguinal canal, urethra, urethral meatus। Testis, epididymis, vasa efferentia, rete testis, inguinal canal, urethra। So what is the correct order? अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे स्टार्ट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिस। अब उससे थ्रू क्या निकलता है? टेस्टिस से बहुत सारे शॉर्ट स्ट्रक्चर्स ऐसा निकलते हैं, लाइन जैसा, जाल जैसा, जिसको क्या बोला जाता है? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस किस में जाता है, जुड़ता है? कम से कम वासा एफ्रेंशिया, वहां से वो उसको कनेक्ट करता है। वासा एफ्रेंशिया से वो कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस, जो लॉन्ग पोर्शन है, जिसके हेड पोर्शन होता है, मेन पोर्शन बॉडी होता है एंड टेल पोर्शन होता है। एपिडिडाइमिस से फिर कहाँ जाता है? वास डिफरेंस। देन बच्चों वो मिलता है इजैकुलेटरी डक्ट में, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट?
ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बाकी सब में ऑर्डर जो है वो इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वासा एफरेंशिया एपिडिडाइमिस के पहले यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी वही है, बट दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो 162 का 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Which of the following produces sperms and spermatogenesis? ठीक है, अब sperms कौन बनाता है? तो सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इमेच्योर जर्म सेल्स। अब देखिए, हमको बात करनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसके द्वारा हो रहा है या कहाँ हो रहा है, कौन प्रोड्यूस करता है। सर्टोली सेल तो नर्व सेल है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये जो है अंडरगो करता है, यही इन्वॉल्व होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाता है? स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिख रखा है? इमेच्योर मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। लेकिन ये मेल जर्म सेल जब मैच्योरिटी अटेन करता है तो वो क्या बनाता है? व्हेन मैच्योर्स, है ना, वो डिफरेंशिएट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस अंडरगो करता है, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं मियोसिस में इन्वॉल्व होता है ना। तो आप इससे आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आंसर कौन सा होगा बच्चों? देखो मैंने अभी आपको जस्ट ऑर्डर बता दिया कि यहाँ पे इमेच्योर वर्ड रख रखा है, मैच्योर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और वही अंडरगो करता है मियोसिस के थ्रू, यानी मियोसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और मियोसिस 2 से स्पर्मेटिड, ठीक है, एंड देन फ्लैजेलेशन कंप्लीट तो स्पर्म इज फॉर्म। सो आंसर इज primary spermatocyte. Now, pick the odd one out from each series given below and select the correct option. Now we have to find correct one. Scrotum, हीटी टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब। देखो बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, बट फैलोपियन ट्यूब फीमेल एंड वास्ट डिफरेंस मेल। देखो सारे सेम नहीं है। ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, ये तीनों जो है फीमेल के अंदर है, इजैकुलेटरी डक्ट मेल में है। एक्रोसोम मेल का पार्ट, बट ग्राफियन फॉलिकल फीमेल का पार्ट, कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल का पार्ट, सर्विक्स फीमेल का पार्ट। लेकिन प्रोस्टेट यहाँ पे मेल, टेस्टिस भी मेल, सेमिनल वेसिकल भी मेल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी मेल। मतलब ये सारे ऑर्गन जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नाउ Which one of the following cells have haploid number of chromosome? ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, हमको हैप्लॉइड लेवल, डिप्लॉइड नंबर सब ध्यान रखना है ना। तो अब एक एक करके देखते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैंने आपको बताया स्पर्मेटोगोनिया ही डिफरेंशिएटेड होकर क्या बना रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि ये होता है 2n, डिप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये मियोसिस 1 इसके अंदर होता है, और जैसे ही मियोसिस 1 होगा क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो n हो गया, और यही फिर क्या कंप्लीट करता है? मियोसिस 2, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, तो स्पर्मेटिड भी क्या हो गया? n, यानी कि बोथ 2 and 3। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमको हैप्लॉइड नंबर देखना है ना, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास भी है और स्पर्मेटिड्स के पास भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 and 2 haploid number of chromosome, this must be better 2 and 3, both 2 and 3, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो 2n होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो n होता है और स्पर्मेटिड भी n होता है, तो यहाँ पे 2 and 3 ये दोनों जो है करेक्ट होगा। स्लाइड एरर इज देयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ फाइंड आउट स्पर्मेटिड एंड सर्टोली सेल इन गिवन बिलो डायग्राम।
ठीक है, गिवन बिलो डायग्राम। यहां पे फाइंड आउट करिए कि ये कौन है। देखिए ए, ये क्या हो गया बेटा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, और बी क्या है, स्पर्मेटिड। ठीक है, यहां पे ये हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वॉल। एफ जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाता है, oogonia भी, स्पर्मेटोगोनियम भी बोल सकते हैं इसको। एक एक लेयर अगर हम देखें तो स्पर्मेटोगोनिया, ई जो है दिस इज व्हाट, सर्टोली सेल। ठीक है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्पर्मेटिड और सर्टोली सेल। देखो स्पर्मेटिड जो है वो बी और सर्टोली सेल ई। हमको आंसर मिल गया बच्चों जो हमको फाइंड आउट करना था, है ना। तो 166 का 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। देखिए स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। अभी जस्ट हमने लिखा था बेटा, वो हम लोग यहां लिख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, then secondary spermatocyte, then spermatid, and then spermatozoa। तो यहां पे देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्पर्मेटोगोनिया, spermatocyte, primary and secondary both, spermatid and spermatozoa। Difference between a spermiogenesis and spermiation। Spermiogenesis मतलब क्या होता है, जब spermatid जो है spermatozoa में कन्वर्ट हो जाता है। तो spermatid when converted into spermatozoa वो है spermiogenesis। और spermiation क्या होता है, जब ये spermatozoa लीव कर जाए seminiferous tubule से। तो यहाँ देखिए in spermiogenesis spermatozoa from Sertoli cell are released in the cavity, no। In spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatids are formed, no। This is wrong, this is wrong। In spermiogenesis spermatids are formed, while in spermiation spermatozoa are formed, no। In spermiogenesis spermatozoa are formed, correct, while in spermiation spermatozoa are released through seminiferous tubule। This option is correct। So 168 का 4 is correct। Now GnRH, a hypothalamic hormone which acts upon, GnRH कहाँ से निकलता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये किसका सिक्रीशन करेगा, LH और FSH का। तो बच्चों देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। Give the name of 2 hormones A and B in the given below। देखो कौन एक्ट करता है लीडिक सेल पे, तो LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो सिक्रीट क्या करवाता है, एंड्रोजेंस का। तो देखिए हमारे पास आंसर करेक्ट है नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन, LH एंड एंड्रोजेंस। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल, ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का। जब ओवन और स्पर्म दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट करे किस पोर्शन में, एम्पुलरी पार्ट में। तो देखिए द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी पार्ट ऑफ। हमारे को सबसे पहले ऑप्शन में ही ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है फर्टिलाइजेशन का, वो मिल गया। बाकी यहाँ पे क्या दे रहा है, एम्पुलरी पार्ट ऑफ सर्विक्स, रॉन्ग। Transported in cervix within 42 hours of release, wrong। And transported into vagina, no, transported to ampullary part of fallopian tube। So answer number 1 is correct। In human females meiosis 2 is not complete until fertilization। प्यूबर्टी के दौरान meiosis 1 complete होता है, और meiosis 2 के दौरान जब हैप्लॉइड ओवम बनेगा वहां पे जब कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन आता है। Which one of the following is not the function of placenta? To facilitate supply of oxygen and nutrients to embryo, correct। Secrete estrogen, correct। Facilitates removal of carbon dioxide and waste material from embryo, correct। Secrete oxytocin during parturition, no। ये कहाँ से secrete होता है, posterior pituitary से। तो this is wrong। तो option number 4 जो है वो incorrect है placenta के लिए।
Increased secretion of which hormone start the process of sperm formation at the time of puberty? कौन है ऐसा? तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो LH और FS रिलीज करता है, वही जो है प्यूबर्टी के दौरान सारे गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा. वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है. So 174 का 4 is the correct one. This is gonadotropin releasing hormone जो LH and FSH release करवाएगा. Now menstruation is triggered by a sudden decline in the amount of hormones secreted by corpus luteum. Identify the hormone. कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है और उसके कारण जो है मेंस्ट्रुएशन ट्रिगर करेगा जब वो ड्रॉप डाउन होगा? प्रोजेस्टेरॉन. कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन. सो आंसर विल बी प्रोजेस्टेरॉन. Which of the following indicates pregnancy? Lack of menstruation. Yes. Occurrence of menstrual flow. When released ovum is not fertilized. When Graafian follicle matures and endometrium regenerate during proliferation. So indication of pregnancy is what? Lack of menstruation. Two types of cell present in the lining of seminiferous tubule. क्या क्या है? Leydig cell, Sertoli cell? No. Male germ cells and Sertoli cell? Yes. क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? seminiferous tubule में. और seminiferous tubule में दो cells होते हैं. एक होता है male germ cell जिसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होता है Sertoli cell जिसको बोला जाता है nurse cell. तो ऑप्शन नंबर 2 is correct one. Now by the end of how many weeks major organ system are formed during embryonic development? तो major organ system कब बन जाता है? 4, 8, 12, 24. 12 weeks में सारे major organ जो है वो form कर जाते हैं. What happens during the follicular phase of menstrual cycle? Follicular phase की बात हो रही है जिसमें सारे follicles बन रहे हैं. Proliferation of endometrium, reduction in blood supply to endometrium, regression of endometrium, no effect on endometrium. भैया endometrium तो बन रहा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? Proliferation of endometrium. So this option is correct. 179 का 1. And the last question बेटा, blastomeres are daughter cell form in the processor. अब जैसे मान लो जब जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज प्रोसेस. और ये क्लीवेज प्रोसेस क्या होता है? माइटोटिक. तो ये क्या होता है? जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और अंदर में ये जो सेल्स बन रहे होते हैं इनको क्या बोल रहा जाता है? ब्लास्टोमियस. यानी कि ब्लास्टोमियस जो है वो क्या होता है? क्लीवेज व्हेन जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. जब लगातार माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है तो जो अंदर सेल बन रहे होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमियस. सो डॉटर सेल्स हैं जो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं और उसको क्या बोला जाता है? क्लीवेज. बाकी रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म एंटर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, नो. इम्प्लांटेशन व्हेन ब्लास्टोस इज अटैच्ड टू यूटेराइन एंडोमेट्रियम, नो. गैमेटोजेनेसिस व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड ओवरी, नो. सो करेक्ट ऑप्शन इज 180 का 1. सो बेटा आप लोग एक बार इससे गो थ्रू हो जाएं.